हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सभी जानते हैं कि बिट्स, जी हाँ, पिलानी गोवा हैदराबाद कैंपस की एग्जाम यानी हायर डिग्री फार्मेसी के लिए जल्द होने वाली है। अब सिंस इसके पीवाईक्यूज एफएक्यूज क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कुछ आइडिया नहीं होता। सिंस मैंने बिट्स एग्जाम दी थी अपने टाइम पे, आई एम हियर विद सम ऑफ द मोस्ट high prioritization topics that you must give a priority, that are very vital for you, so that those are to be done at beginning irrespective of the weightage. So higher priority subjects are pharmaceutics, analysis and ecology. जी हाँ, सुटिक्स एनालिसिस एंड कोलॉजी अगर आप 300 मार्क का पेपर है तो कह सकते हैं 150 मार्क्स ऑलमोस्ट यहीं से आएंगे। एब्सोल्युटली। द लेसर प्रायोरिटी और नीश सब्जेक्ट्स आर माइक्रोबियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस। अब नेक्स्ट चीज आती है कि सर ये तो आपने सब्जेक्ट बता दिए, अब सब्जेक्ट के अंदर कॉन्सेप्ट्स या कहां से क्वेश्चन आते हैं। So number one, we have pharmaceutics. From here, there are questions from rheology, right? The flow properties of a powder, the pre-formulation characterizations. दूसरा यूनिट ऑपरेशन से यानी ड्राइंग, डिस्टिलेशन, सेंट्रिफिकेशन, मिक्सिंग, राइट? जब भी आप सपोज कोई बिरयानी या कोई चिकन करी बनाते हो, राइट, पहले आप मैरिनेट करके रखोगे, देन आप कुकर चढ़ाओगे, देन आप गार्निश करोगे। देर आर डिफरेंट यूनिट ऑपरेशंस व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग अ डिश। तो जब आप एक टैबलेट बनाते हो, उसके बनाने के लिए भी पाउडर से लेके उसे पंच करने से लेके उसे पैकिंग तक, देर आर अ सेट ऑफ यूनिट ऑपरेशंस। Then formulation from the industrial pharmacy, tablets, capsules, इनके एक्सीपियंट्स पे, राइट? जब भी आप कोई खिचड़ी बना रहे हो, सिर्फ खिचड़ी के लिए मूंग दाल चाहिए नहीं, यू नीड मूंग दाल, यू नीड वाटर, यू नीड टर्मरिक, सॉल्ट, डिफरेंट स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स। वैसे ही जब आप एक टैबलेट बनाते हो, सिर्फ पैरासिटामोल नहीं चाहिए, you also need some binder, you need a PVP, you need either starch, you need lactose, right? You need HPMC, any kind of polymer, excipients. Then you have method of preparation, dry granulation, wet granulation. Along with that, some defects. Then NDDS से सवाल बहुत बार पूछे गए हैं, especially vesicular drug delivery system like liposomal, transdermal patches. The next is pharmacology, toxicology. So here there are general principles like the ADME, the dose response curve, therapeutic index, potency versus efficacy, correct? कुछ ड्रग्स होते हैं ना जो 5 mg 10 mg में भी काम कर जाते हैं, कुछ ड्रग्स जिनको 1000 mg भी लगती है, 500 mg भी लगती है टू एक्ट। So different potency, efficacy, narrow therapeutic index drugs, the DRC sigmoidal curve, right? And the log dose response curve. From the cardiovascular and the CNS pharmacology, drugs for Alzheimer's, Parkinson's, epilepsy, depression, right? Hypertension, angina, arrhythmia, heart failure. Then endocrine में drugs for diabetes, thyroid, chemotherapy, antibiotics, anti-cancer, antiviral and खासकर antidotes. हर साल antidote से एक question होता ही होता है. Chemistry is very critical yield because here they focus upon the SAR of benzodiazepines, local anesthetics, sedative hypnotics, and penicillins, beta-lactam antibiotics. Then on the organic chemistry point of view, SN1 and SN2, electrophilic and nucleophilic substitution reactions. From the pharmaceutical analysis part, IR interpretation, spectra, NMR splitting. Titration से acid base redox इनके indicators पे question आते हैं, और the solvent used in non-aqueous. Right, so make sure you know the indicators. From the analytical validation part, you have questions on accuracy, precision, LOD, LOQ. Chromatography, concepts like Van Dienter's curve, column chromatography, HPLC, GC. From the instrumental methods of chromatography and spectroscopy, you have UV and IR spectroscopy, just instrumentation, sources, detectors, sample, everything from start to end, A to Z. From pharmacognosy, there are direct questions जो कि sources पे आते हैं, जैसे turmeric, cinchona, ravolfia, clove, cinnamon, right? Fennel, coriander. So these are all pharmacognostic drugs. Then the identification, how will you identify? जैसे clove, क्लव को आप पानी में डालिए, एंड इस एक्सपेरिमेंट के बाद आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना क्लव पानी में तैर रही थी या सिंक करी। इससे मैं आपको बताऊंगा अडल्ट्रेशन कि वो लवंग एक्चुअल क्लव है या फिर वो अडल्ट्रेटेड है। सिमिलरली अंडा, एग, एग को पानी में रखिएगा और देखना वो एग फ्लोट कर रहा है या वो एग सिंक कर रहा है। ओके, दीज आर डिफरेंट मेथड्स। टर्मरिक, टर्मरिक में लोग काफी बार येलो पाउडर, येलो कलर मिला देते हैं।
मिर्ची पाउडर में ब्रिक पाउडर मिला लेते हैं, मिल्क में वाटर मिला लेते हैं. These are different adulteration, right? So how can you identify microscopic method, chemical methods of analysis, right? Different quality control tests like the stomatal, trichome, starch grain, lycopodium, spore method. From the anatomy, physiology, microbiochem, mostly vitamins, enzymes पे सवाल आते हैं and glycolysis and Krebs cycle. आप कहते हैं आपकी बॉडी को एनर्जी की जरूरत है. एनर्जी कहाँ से आती है? ये साइकिल से. These cycles produce energy. एनर्जी के लिए क्या करना पड़ता है? बैलेंस्ड डाइट, कार्ब्स, आप शुगर खाते हो, प्रोटीन्स खाते हो. There is a different metabolism cycle. Right? Amino acid metabolism, transamination, deamination, oxidation, decarboxylation, reduction, hydrolysis, अलग अलग रिएक्शन आपके बॉडी में होते हैं. दैट इज वाई मेटाबॉलिज्म इज इंपॉर्टेंट. कहते हैं ना कुछ लोग कम खाते हैं लेकिन फिर भी उनका पेट जल्दी बाहर आ जाता है. कुछ लोग इतना खाते हैं बट फिर भी पतले रहते हैं. दैट इज ऑल मेटाबॉलिक रेट, द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म. माइक्रोबायोलॉजी, देयर आर क्वेश्चंस ऑन स्टेनिंग, देयर आर क्वेश्चंस ऑन कल्चर मीडिया, ग्रोथ कर्व. एक बैक्टीरिया जब ग्रोथ करता है, ह्यूमन कैसे ग्रोथ करता है? एक प्रेग्नेंट लेडी है, पार्चुरेशन अकर्स, जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट्स, इन्फेंट बाहर आता है, नियोनेट, ब्रेस्ट फीडिंग के बाद वो बड़ा होते जाता है, राइट? ये यंग एडोलेसेंट, एडल्ट, एंड देन फाइनली जेरियाटिक, राइट? सो एक साइकिल है, वैसी बैक्टीरिया की भी एक ग्रोथ कर्व की साइकिल है. ग्राम स्टेनिंग, द डिफरेंट प्राइमरी स्टेन, काउंटर स्टेन, द डिफरेंट एजेंट्स यूज्ड इन द स्टेनिंग. Immunology and vaccines, direct questions on types of vaccines, types of immunity. Jurisprudence से superficial question आते हैं on prescription handling, schedule M and schedule H. अब ये 10 क्वेश्चन है जो मैंने आपके लिए एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन लाए हैं. सो इन क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करके इनका आंसर चैट बॉक्स में डालना है. फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट इन टैबलेट. सेकंड, विच रिसेप्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रोंकोडाइलेशन बाय सैल्ब्यूटामॉल. थर्ड, बीटा लैक्टम रिंग एसेंशियल फॉर द स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ. सो बीटा लैक्टम इसमें से कौन से स्ट्रक्चर में है? सेना इज यूज्ड एज. Which instrument is used for absorption and UV range? और ये सभी अलग अलग डोमेन से है. बायोफार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नेसी, जुरिस्प्रूडेंस, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, राइट, मेडिसिनल केमिस्ट्री, हर एक डिफरेंट डोमेन से, जैसे एनालिसिस से ये सवाल है. सो दैट यू हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया कि हर टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आए थे. Which is a final electron acceptor in aerobic respiration, gram positive bacteria which retains the stain, bioavailability definition, right, which is the most common microorganism, E. coli, right, for recombinant insulin technology, drug and cosmetic act. So this is it for today's video. अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई स्पेसिफिक एग्जाम, कोई स्पेसिफिक कॉलेज या कोई स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो जरूर कमेंट करिएगा. I'll be waiting for your comments. Thank you very much everyone.